Hello everyone. Hi. Welcome back to another video for linear equation chapter 4. And if you have been watching the videos and doing the task packets regularly, you must know we have already completed a lot of topics from this chapter. Hence, I thought a chapter map at this point of time would be very helpful. I've just made a very simple chapter map. I'll just show you things that we have already covered. तो हमारे पहले वीडियो में हमने कवर किया कि what is understand like what is linear equation. We try to understand linear equation बोलते किन चीजों को है. Then we said अच्छा इन चीजों को linear equation कहते हैं, but उनको हम standard form में कैसे लिखते हैं? So we learned about standard form. And we're like, okay, let's standard form is done. So how can I find a solution of linear equation? Then we realized कि एक solution नहीं आता linear equation में. Linear equation में बहुत सारे solutions आते हैं. Then we came to the fourth point where we said कि अच्छा linear equation in two variables हम पढ़ रहे हैं, लेकिन what about linear equations in one variable? उनको हम कैसे लिख सकते हैं? What is the standard form? What is their solution? And वो सब हमने fourth video में discuss किया. Then finally we came to the fifth video where we said कि अच्छा all of that is done. Now let's see how can I represent a linear equation in a graphical form. Now, in this sixth part of this chapter, which is the most important part, I would say, we will be creating linear equations. How we will be learning how do we create a linear equation. Uh, because this is a vast topic and a bit complicated topic, we will not be just making one video on this. There will be three different videos that will be made for sixth part. So this is the first part of that topic. So ये पहली video है, and with that I think we should start. So we'll be discussing about creating linear equations. Before we move on to learn how do we do that, कि हम कैसे बनाते हैं linear equation, हम कैसे करते हैं, क्योंकि पहले अभी तक तो क्या होता था कि हमको questions में ही मिल जाता था कि भैया ये this is the linear equation, standard form निकालो, solution निकालो, graph निकालो and all of that. हमको linear equation दी हुई रहती थी. अभी हमको खुद से बनानी है. But हम खुद से बनाने से पहले what we'll do is we'll think what is the use of linear equation? Why do we create linear equation? I just ask you to take a moment and think about it. Why do we need to create linear equations? Think about it and take some time. Pause the video if you want to pause it and do give it a thought. Why do we need to create linear equations? So a lot of you might have guessed it correctly. हमने first video में भी ये discuss किया था. I have specially used this picture to explain it better. कि किसी भी दो चीज के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना हो तो हम लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं. नाउ इट कैन बी एनी टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. कोई भी दो चीजें जो आपस में कनेक्टेड है किसी तरीके से भी, तो वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं एंड इट विल डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन देम. रिलेशनशिप इन टर्म्स कि वो आपस में एक दूसरे में कैसे कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेड है, वो हम लीनियर इक्वेशन के थ्रू वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाउ एनी टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर कनेक्टेड और आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब आपने सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि ये होता है क्यों होता है, बट कैसे करें, हाउ डू वी एक्चुअली डू दैट? So let's see a question. Let's try to figure out the question. What's the question? And let's see linear equation हमको कैसे help करेगा वहाँ. So at this moment, I'll just ask you to focus on the first line of the equation. First line. The age of Abhishek is 10 years more than his brother. बस इतना पे सोचो. तो इसमें आपको दो चीजें क्या क्या दिख रही है? What are the two things that you are seeing? तो पहली चीज दिख रही है हमको एज ऑफ अभिषेक. दूसरी हमको दिख रही है एज ऑफ हिज ब्रदर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में जो पिक्चर दी हुई है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ पिक्चर, कि भैया ये तो अभिषेक है, ठीक है, दिस इज अभिषेक, आई एम राइटिंग ए, एंड दिस इज हिज ब्रदर बी. सो इन दोनों की एज में देयर इज अ रिलेशन. और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन कहता है कि भैया अभिषेक इज 10 years ओल्डर. इसका मतलब
जितना भी उस ब्रदर की एज होगी उससे ज्यादा, उससे 10 साल ज्यादा अभिषेक की एज होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ ब्रदर्स एज इज 12, तो अभिषेक की एज हो जाएगी 22। 10 साल बड़ा है अभिषेक अपने भाई से। इफ ब्रदर्स एज इज 5, अभिषेक से एज विल बी 15। सिमिलरली यू कैन ब्रिंग एनी नंबर, लाइक अगर ये 3 साल का है तो ये 13 साल का होगा, ये 4 साल का है तो ये 14 साल का होगा। एनी एज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अभिषेक की एज अपने भाई की एज से 10 साल बड़ी होगी। तो अब अगर मेरे को इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना हो तो हाउ डू आई राइट इट, हाउ डू आई एक्सप्रेस दिस थिंग। मैं इसको लिख के कैसे बताऊं कि भैया इसको हमको मैथ में लिखना है, हमको मैथ की लैंग्वेज में लिखना है। सो लेट्स सी क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन है ना, हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। क्वेश्चन कहता है टेकिंग अभिषेक एज एज वाई एंड हिज ब्रदर एज एज एक्स, डिफाइन ए लीनियर इक्वेशन। आपको अभिषेक की एज का लिए क्या वेरिएबल लेना है, वाई। तो अभिषेक एज इक्वल्स टू वाई, ब्रदर्स एज इक्वल्स टू एक्स। हमने ये ले लिया। हम कह रहे हैं कि इसकी एज को हम y मान लेते हैं, इसकी एज को हम x मान लेते हैं। तो अब बताओ y और x के बीच में क्या रिलेशन था। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, y और x के बीच में कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर मैं भाई की एज में 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास y आ जाएगा। ये हमारा एक रिलेशन बन गया कि इफ आई एड 10 टू एक्स, मेरे पास y आ जाएगा। अगर मेरे को x पता है, मैं y निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं उसमें 10 ऐड कर दूंगा। तो ये इन दोनों के बीच का एक रिलेशन दिखाता है कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। अगर मेरे पास x दिया हुआ है, उसमें 10 ऐड कर दूं, मेरे पास y आ जाता है। इसका मतलब ये है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। दोनों का मतलब सेम है, आप स्वैप कर सकते हो साइड्स। सो यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन बन जाता है। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। और ये दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, और वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें अभिषेक की एज और उसके भाई की एज है। उन दोनों की एज में क्या रिलेशन है? 10 साल का रिलेशन है कि 10 साल बड़े है एक की एज। तो वैसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। हमने लीनियर इक्वेशन डिफाइन कर लिया। हमने लीनियर इक्वेशन डिफाइन करके बोला लीनियर इक्वेशन इज y इक्वल्स टू x प्लस 10। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें और क्या क्या सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कितने क्या क्या बचा है और क्या क्या सॉल्व करना है। सेकेंड ये देखते हैं, फर्स्ट बिट देखते हैं। हमारा फर्स्ट बिट में क्या कह रहा है? सो द फर्स्ट बिट सेज फाइंड आउट अभिषेक एज इफ हिज ब्रदर एज इज 11। ब्रदर की एज 11 है, तो ब्रदर की एज का वेरिएबल कौन सा है? x। तो ये कह रहा है x इक्वल्स टू 11 है, आपको y निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। y इक्वल्स टू x प्लस 10। x के बदले हम लिख देंगे 11 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 21। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गई हमारी अभिषेक की एज y। ठीक है, वेरी सिंपल। वंस वंस यू हैव लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है, जो हमने बहुत पहले सीखा है, सॉल्यूशन के टाइम सीखा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑन अ ग्राफ। अगेन वेरी सिंपल, वी नो हाउ टू बी रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑन द ग्राफ। लेट्स सी उसको कैसे करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू x प्लस 10। ठीक है। तो लेट्स सी उसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। ये तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हुए हैं कि ये हमारी इक्वेशन है। वी नो अगर हमको ग्राफ में दिखाना है, वी नीड टू फाइंड 3 पॉइंट्स। हम 3 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। पहले में मैं लेता हूँ x इक्वल्स टू 0, दूसरे में आई विल टेक x इक्वल्स टू 5, फिर मैं लूंगा x इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 प्लस 10, तो y 10 आ जाएगा। पहला हो गया हमारा 0,10, पहला पॉइंट हो गया 0,10। फिर y इक्वल्स टू 5 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया 5,15। सिमिलरली ये हो गया y इक्वल्स टू 10 प्लस 10
विच इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया 10, 20, 5, 15, 10, 20। स्टेप्स मिस नहीं करेंगे, जो स्टेप्स दिया हुआ है हम एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ पे जब आपका स्केल बनेगा, देखो आप बच्चों 5, 10, 15, 20 ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको 5, 5 का यूनिट ले लेंगे। 5, 10, 15, 20, -5 इधर वैसे ही जाएगा। 5, 10, 15, 20, -5, -10। मैं नीचे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे सारे सॉल्यूशन पॉजिटिव है, मैं सिर्फ इधर का ही कर रहा हूँ। तो अब हम पॉइंट्स प्लॉट करके देखते हैं पॉइंट्स कैसे दिखेंगे। पहला है 0,10, 0,10 यहाँ पे आएगा। फिर है 5,15 यहाँ पे आएगा। फिर है 10,20 यहाँ पे आएगा। Now you can see all the 3 points are in a straight line. All you need to do is draw a straight line. इसके बाद एक important step ना भूलें, इसके बाद हमको यहाँ पे एरो लगाना बहुत जरूरी होता है। If you don't put the arrow, you will lose marks. तो जो भी लाइन है उसके एंड पे हम एरो पुट कर देंगे, ठीक है। So with that बच्चों you solve the biggest problem in this chapter. ये सबसे complicated questions होते हैं. This is the most complicated type of question that you receive in exams. You must be having a lot of doubts. You must be having a lot of questions, and the only way to learn this concept or any concept in mathematics is practice. So let's practice one more question, and उसके बाद I'll give you a few practice questions that you can do on your own along with some clues. मैं आपको थोड़े clues भी दूंगा solve करने के, और आप खुद से करोगे। फिर again यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो exactly हमने पहले किया था। We will just read out the first sentence and see, हम will try to find out the relationship. So first sentence says the cost of notebook is twice the cost of pen. इसका मतलब अगर समझा जाए कि अगर मैं एक नोटबुक खरीदता हूँ तो उसकी कॉस्ट जो होगी पेन से डबल होगी। अगर मेरी पेन 10 रुपए की है तो मेरी नोटबुक 20 रुपए की होगी। अगर मेरी पेन 5 रुपए की है तो मेरी नोटबुक 10 रुपए की होगी। तो आप जो भी आप नोटबुक खरीदेंगे उसका कॉस्ट जो होगा वो आपकी पेन से डबल होगा। तो अब इसको देखते हैं, अगर इसको मेरे को लीनियर इक्वेशन में बताना है तो क्या होगा। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ पेन है इंटू 2 कर दो तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक निकल जाएगी। तो आपके पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जस्ट पुट द वेरिएबल्स इन द इक्वेशन एंड यू विल हैव योर आंसर। लेट्स सी कैसा दिखेगा ये लीनियर इक्वेशन। ओके, सो पहले ये लिख लो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू एक्स, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू वाई। तो हमारा रिलेशनशिप क्या कह रहा है, हमारा रिलेशनशिप ये कह रहा है कि ये जो नोटबुक है ये पेन की जो कॉस्ट होती है उसका डबल है। पेन की कॉस्ट को अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो आपके पास नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी। तो आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप का दिखेगा, x इक्वल्स टू 2y। ये आपका फाइनल इक्वेशन दिखेगा, x इक्वल्स टू 2y। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। आपको लग रहा होगा कि भैया हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है सेंटेंस, लेकिन आपको 1 सेकंड में कैसे आंसर पता चल जा रहा है। सो इट इज अ ट्रिक बच्चों, देयर इज अ ट्रिक व्हिच यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद एक बार आपने जब लीनियर इक्वेशन फाइंड कर लिया ना, फिर हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। फिर आपको सिंपली बोला है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेन इफ नोटबुक कॉस्ट इज 20। नोटबुक की कॉस्ट 20 है, तो अब बच्चों आप क्या करोगे, नोटबुक का मतलब क्या होता है x, तो आप लिख दोगे x इक्वल्स टू 20। तो अब आपको फाइंड करना है y। तो अब देखो क्या होगा, 20 इक्वल्स टू 2y। तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 10। तो आपका पेन का कॉस्ट आ जाएगा 10 रुपए। सिंपल सी बात है, अगर नोटबुक 20 की है तो पेन कितनी की होगी, 10 की, क्योंकि डबल है नोटबुक पेन का। तो आपके पेन की कॉस्ट आ गई 10 रुपए। सेकेंड पार्ट क्या है देखते हैं, रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ।
तो हम भैया क्वेश्चन को बोलेंगे कि सुनो, बात ऐसी है, हमको ये बहुत अच्छे से आता है, हमको इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये इक्वेशन है, मेरे को लाइन प्लॉट करनी है, मैं 2 मिनट के अंदर करके दिखाऊंगा। मैं y की वैल्यू लेते जाऊंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आती जाएगी। y इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 2 × 1, तो x आ गया 2, पहला पॉइंट हो गया 2, 1। फिर y इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4, 2। फिर y इक्वल्स टू 3 तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 6, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6, 3। आप पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दो, 2, 4, 6, 1, 2, 3। अब हमको इनको सिर्फ प्लॉट करना है ग्राफ में, तो x2 है तो y1, ये रहा पॉइंट, x4 है तो y2, ये पॉइंट, फिर 6 और 3। ये बात देखेंगे तो ये काफी स्ट्रेट लाइन है, काफी सीधी लाइन बनेगी, जैसे कि हमेशा हमारी लाइन बनती है। हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं। एंड वन फाइनल स्टेप विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, एरो मार्क करना मत भूलना, एक एरो मार्क कर देना जरूर। सो ये आपकी लीनियर इक्वेशन ग्राफ में प्लॉट हो गई। आपके पास बच्चों लीनियर इक्वेशन बनाना ही नया टॉपिक है, उसके अलावा तो जो आप पहले से करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो, और उसको आसान करने के लिए आई होप आपने लिख लिया था, नहीं लिखा है तो अभी पॉज करके जल्दी से लिख लो अपनी नोटबुक में। सो आई वाज सेइंग कि अगर आपको ट्रिक सीखनी है वो लीनियर इक्वेशन बनाने की, तो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड दैट आई एम शोइंग, जो आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देगा। तो एक क्वेश्चन कई लोगों ने मेरे को पूछा था जब मैं ये क्लास में पढ़ा रहा था कि भैया पहले वाले में तो हमने 10 को प्लस किया था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, ये हमको पता कैसे चलेगा कि हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड करना क्या है, हमको कैसे पता चलेगा? तो दिस इज द ट्रिक बच्चों। अगर आपको ऐसे क्लूज दिए रहते हैं हमेशा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, अगर आप ये क्लूज फाइंड आउट कर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले 3 पॉइंट्स देखो, पहले 3 क्लूज देखो कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि सम दिया हुआ है या टोटल लिखा हुआ है या मोर देन या एल्डर देन, ऐसे वर्ड्स दिए होंगे तो आप इसमें प्लस करोगे चीजों को। अगर आपको बोला गया है लेस देन या यंगर देन या डिफरेंस, ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आप माइनस करोगे। अगर डबल दिया गया या ट्रिपल या ट्वाइस थ्राइस और टाइम्स, इन चीजों का इन वर्ड्स, ये वर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ये स्टार से आप कंफ्यूज मत हो, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर आपको ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं कि हाफ, 1/3, 1/4, इस टाइप की चीजें दी गई हैं तो इसका मतलब डिवीजन होता है। और जहां पे भी आपके सेंटेंस में इज और आर दिया है उसका मतलब इक्वल टू होता है। अगर आपके सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड्स दिए हुए हैं तो आप इन वर्ड्स के बदले आप ये चीजें लिख सकते हो। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि भैया ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे होगा, क्यों होगा? तो देखो काफी सिंपल है, आप समझ जाओगे। इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 20। देखो जब डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई की बात करें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिफरेंस का देखो कौन सा साइन लगता है, डिफरेंस इज नेगेटिव, माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो ऊपर क्या होता है, इक्वल टू होता है, तो ये हो गया इक्वल टू 20, ये हो गया। यहाँ पे सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम देखो क्या है, सम 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 इज प्लस, हमको यहाँ पे प्लस करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू 10, सिंपल। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है, या तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, फिर यहाँ पे इज दिया हुआ है, इज दिया रहता है मतलब क्या करना होता है हमको, इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू, डबल। हम यहाँ करेंगे 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन बाय, ये आ गया आपका x इक्वल्स टू 2y, जो हमने अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, x इक्वल्स टू 2y।
हम बस ऊपर के जो वर्ड्स दिए हुए हैं हम उनको यूज करके हम आंसर निकालेंगे। एक और देखते हैं, राम एक्स, अगेन यहाँ पे इज दे दिया है पहले से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू, हमने इसका मतलब बोला था इक्वल्स टू है, तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 years यंगर देन श्याम। 10 years यंगर देन श्याम मतलब यंगर, देखो इसका मतलब क्या होता है, यंगर का मतलब होता है माइनस, तो इसमें क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखना, ये 10 माइनस वाई नहीं होगा, यहाँ पे y माइनस 10 होगा। ध्यान से देखो, 10 years यंगर देन श्याम, श्याम जो है, जो y है, y से 10 साल कम क्या चीजें होंगी, y माइनस 10, तो ये y माइनस 10 होगा, ठीक है। सो ये 4 एग्जांपल्स थे, ये मैंने आपको समझाए हैं। और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आई विल लीव इट टू यू, आप प्रैक्टिस करो। आप पहले इनका नोट्स बना लेना ध्यान से अपनी नोटबुक में। एक सेकेंड, ये क्लूज इन क्वेश्चन हेडिंग डालो, ये 10 पॉइंट्स लिखो अपनी नोटबुक में, नीचे जो सॉल्व किए गए एग्जांपल्स हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट्स बनाओ, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। Please take your time. Remember, taking your time to understand thing is the most important part in maths. Take your time. Once you have written this, we'll move forward. Now, okay, a lot of kachra on the screen. Let me clear it. Yeah, there are 5 practice questions. I'll just give you a brief idea. मैं पूरा नहीं बताऊंगा। यहाँ देख लो बच्चों, is दिया हुआ है और 5 more than दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे sum दिया हुआ है, यहाँ पे is दिया हुआ है, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पे इज दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है और यहाँ पे इज दिया हुआ है, यहाँ पे इज है और यहाँ पे 10 टाइम्स है। तो आपको ये सारे वर्ड्स पिछले वाले नोट्स में आपको मिल जाएंगे, जो आपने किया था वो करो और लीनियर इक्वेशन निकाल लो। काफी इजी लगेगा आपको, एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस, देन यू विल अंडरस्टैंड। इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। With that, बच्चों, we come to a conclusion of this video. Thank you so much.